Hello everyone, we welcome each one of you for this Bible session with us. और आप सभी का स्वागत करते हैं इस बाइबल सेशन में. And I'm Bonifer and here is my wife Beena. और ये बॉनिफर है और मैं उनकी पत्नी बीना. And as we bring you the word today, और जैसे आज हम आपको प्रभु का वचन बताएंगे, we call it a blessing. हम इसे आशीष कहते हैं. And we pray that it will become a blessing in your life. और हम प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए भी आशीष बने. Let us spend a couple of minutes in worship. आइए थोड़ा समय प्रभु की आराधना करें. So, oh Lord, we come to worship you. Holy God. Lord, we come to worship you and to glorify your name, O Lord. प्रभु आते हैं आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए. We pray that hearts be opened, हम प्रार्थना करते हैं कि सुनने वालों का मन खुल जाए, that we may receive your word कि हम आपके वचन को ग्रहण कर पाए and we may be able to act on it, और उस वचन पर हम चलें, so that your grace ताकि आपकी कृपा may continue to have ground in our lives हमारे जीवन पर वो जड़ पकड़े and that it may bear fruit, और फिर फल उत्पन्न हो, a 30-fold, 30 गुना, a 60-fold 60 गुना and a 100-fold और 100 गुना and even more, और उससे भी कहीं ज्यादा that बढ़े, each one of us ताकि हम में से हर कोई may be fruitful for our Father हमारे पिता के लिए फलदार हो and they may bring you pleasure, और हम आपको प्रभु खुशी ला सके, glory and honor महिमा और आदर आपको दे may सके. be to each one of you. प्रभु हम में से सभी लोग आपको आराधना दें. In Jesus' name we pray this यीशु prayer. के नाम में प्रार्थना करते हैं. Amen. आमीन. Let's quickly go into the word. आइए वचन की ओर बढ़े. We look at Genesis. आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब से. Genesis 50 verse 15 onwards. उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय उसकी 15वीं आयत. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "What if Joseph holds a grudge against us and pays us back for all the wrongs we did to him?" So they sent word to Joseph saying, "Your father left these instructions before he died. This is what you are to say to Joseph. I ask you to forgive your brothers the sins and the wrongs they committed in treating you so badly. Now please forgive the sins of the servants of the God of your father." When their message came to Joseph, he wept. His brothers then came and threw themselves down before him. "We are your slaves," they said. But Joseph said to them, "Don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So then, don't be afraid. I will provide for you and your children," and reassured them and spoke kindly to them. उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय 15 से 21 तक हम पढ़ेंगे. जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी उस सब का बदला हमसे ले. इसीलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराधों और पापों को क्षमा कर. हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर. उनकी ये बात सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसे सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं. यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया भी, परंतु परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदला, जिससे कि उसने आज के दिन प्रकट किया कि मेरे द्वारा बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं. इसीलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा. इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर तसल्ली दी. Amen. Friends, today as I was preparing the word, और आज जैसे मैं वचन तैयार कर रहा था and I was meditating upon this story, और मैं इस कहानी पर
ध्यान लगा रहा था। And I realized that Joseph was a very small boy of 17 years. और फिर मैंने इस बात पर गौर किया कि यूसुफ छोटा लड़का था 17 साल का। And because of his young age, और उसकी छोटी सी उम्र की वजह से his elder brothers उसके बड़े भाइयों ने took undue advantage of him. उसका गलत फायदा उठाया And they kept bullying him. और वो बार बार उसका मजाक उड़ाते। But that bullying turned into bondage. पर उसका मजाक उड़ाना एक तरह का उसके लिए बंधन बन गया। And he was put in the pit और उसे गड्ढे में फेंका गया only out of jealousy. क्योंकि उसके भाइयों के मन में यूसुफ को लेकर जलन थी। And that pit took him to the prison. और वही गड्ढे से वो फिर जेल में गया। But that prison led him into the palace. पर वो जो जेल खाना था वहाँ से फिर वो महल में पहुँचा। But my friends, Joseph endured a lot. पर हम देखते हैं कि यूसुफ ने जीवन में बहुत सारी बातों को बर्दाश्त किया। Now in this, when I was meditating, I realized पर इस बात पर जब मैं मनन कर रहा था तो एक बात पर मेरा ध्यान गया। Joseph was very small. यूसुफ बहुत छोटा था। When we start reading his story, जब हम उसकी कहानी पढ़ना शुरू करते हैं and in the eyes of his brothers, और उसके भाइयों की नजरों में also he was very वो small. बहुत ही छोटा था He was insignificant. और वो बहुत ही तुच्छ जाना जाता था। And for many years, और बहुत सालों तक though he grew physically, भले ही वो शरीर में बढ़ता गया, for his brothers, he remained small. उसके भाइयों की नजरों में वो छोटा ही रहा। Even in Potiphar's house, पोतीफर के घर में भी and even in the prison, और कैद खाने में भी he was a Hebrew, a foreigner. वो एक इब्रानी था जो उस देश के लिए परदेशी था। But my friends, पर मेरे दोस्तों, I want to speak to somebody who feels very small in this world. मैं उन लोगों से आज बात करना चाहता हूँ जिन्हें लगता है कि इस दुनिया में, बड़ी सी दुनिया में हम तो बहुत ही छोटे हैं। Those people who feel that we are insignificant and cannot achieve or do anything. ऐसे लोग जिनको लगता है कि मेरे जीवन का कोई मायने नहीं है या मैं कोई खास काम इस धरती पर नहीं कर सकता। Let me tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, when God starts using that little जब in you, परमेश्वर वो आपके अंदर जो थोड़ा है उसका इस्तेमाल करता है, He starts to have to take the entirety of you. तो परमेश्वर को आपकी संपूर्णता को लेना पड़ता है। And then He starts working in you. और जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, And when He starts working in you, और जब उसका काम आपके जीवन में शुरू होता है, things which are not good, जो बातें अच्छी नहीं है He needs to remove. वो परमेश्वर निकालता है। And that process is very hard. और वो जो विधि है चीजों को निकालने की, वो बहुत ही मुश्किल और कठिन है। It takes a lot of pain. और उसमें बहुत ही दर्द सहन करना होता है। At the same time, और उसी समय slowly and slowly in the cleaning process, धीरे धीरे जब परमेश्वर ये सफाई हमारे जीवन में करता है, we start to see a shine coming out of our lives. हम देखते हैं कि हमारे जीवन में या हमारे जीवन के द्वारा वो चमकाहट बाहर आती है। It's like, we are as small as a small cup. ये मानो ऐसा है कि हम एक छोटे से प्याले जितने छोटे हैं। A cup may be holding not even 50 grams of, and then we think that we are so small और हमें लगता है कि हम इतने छोटे हैं that we will not amount to anything. कि हमारा यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। But when God starts using you, पर परमेश्वर जब आपका इस्तेमाल करता है, imagine that it's a cup that holds maybe 5 grams or 10 grams of some volume. और मान लीजिए कि वो प्याला इतना छोटा है कि उसमें जो भी हम चीज डालेंगे वो 5 ग्राम या 10 ग्राम से ज्यादा नहीं होगी। Well, that is very insignificant. पर ये तो बहुत ही छोटी चीज है। But my friends, let me tell you, पर मेरे दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूँ, even if we are small, God can start using us. अगर हम छोटे भी हैं फिर भी परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सकता है। I remember when we were cooking food, और मुझे याद है कि जब हम खाना बना रहे थे, we had a big basket in which we had the rice flour or the wheat flour. तो हमारे पास एक बड़ा डब्बा है जिसमें गेहूं का आटा है। And to take the flour to cook or to prepare the meal, और आटा गूंदने के लिए जब हम उस डब्बे में से आटा निकालते हैं, we could use our hands. हम अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। But the hands will not hold the right proportion every single time. पर हर बार जितना आटा हमें चाहिए वो हाथ से तो निकाल नहीं सकते हैं। So I needed something to measure consistently. तो मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए थी जो मैं नाप के डाल सकूं। And then I found a small little tumbler in which there was some sauce that was delivered to our house. और फिर मुझे एक छोटा सा प्याला मिला जो हमें किसी सॉस में डिलीवरी हुआ था। And I took that small container. और वो मैंने छोटा सा प्याला लिया, वो डब्बा छोटा सा लिया।
And that container was so small that I was about to even throw it the earlier day. और वो डब्बा इतना छोटा था क्योंकि हमने खाना बाहर से मंगवाया था, तो उस छोटे से डब्बे में सिर्फ सॉस आया था। हमें लगा इसका क्या काम है, हम इसे फेंक देते हैं। But then I found a purpose. पर फिर उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मुझे समझ में आ गया। I took it and I washed it very, very deeply. और उसी डब्बे को या उसी प्याले को मैंने लिया और बहुत अच्छे से साफ किया। And I removed all the oil and all the stain of the sauce that was there earlier. और जो भी उस डब्बे में तेल था, जो भी सॉस आसपास में लगा हुआ था, बहुत अच्छे से हमने साफ किया। I kept smelling it to see that there has to be no odor of any other food in that. और बार बार मैं उसे सूंघ रहा था कि उसमें सॉस की बदबू नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार उसे धो रहा था। And after washing it cleanly, I kept it for drying. और जब मैंने उसे अच्छे से साफ कर लिया तब उसे सुखाने के लिए रखा। I didn't want any water particles in it. मैं नहीं चाहता था कि उसमें पानी की बूंद भी हो। And after it was dried completely, और जब वो जो डब्बा है वो पूरी तरह से सूख गया, I started using it to measure the flour that I was taking to prepare the उसके meal. बाद मैंने उस डब्बे का इस्तेमाल किया ताकि हम वो बड़े डब्बे में से आटा निकाल सके और फिर आटा गूंद सके। So that I could measure each and every portion and count of how much I need to prepare each meal. ताकि हर बार जब मुझे खाना बनाना हो तो मुझे उस डब्बे से नापने में मदद होती थी कि मुझे अभी इतना अगर चपाती बनानी है तो इतना आटा मुझे लेना है। And that small insignificant tumbler और वो जो छोटा सा डब्बा है जो हमें लगा कि इसका कुछ अब मतलब नहीं है, now has a specific purpose. अब उसका हमारे घर में एक खास मकसद है। It measures what I eat. और जो मैं खाता हूँ वो डब्बा मुझे नाप के देता है। I see it every single time, reassured that okay, when the level of it goes very low, I have to refill the entire jar. तो जब भी मैं वो आटा निकालता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अगर आटा कम पड़ गया है तो वो डब्बे से मुझे फिर से आटा भर के डालना है। You see, friends, a small insignificant thing has now brought meaning. और आप देखिए कि जो छोटा सा डब्बा जो हमें लगा कि अब ये तो फेंकने के लायक है, पर अब हमारे इतने काम आता है। Friends, I want to tell you that you may look at yourself as insignificant. हो सकता है कि आप अपने आप को उस नजर से देखते हैं कि मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, But God has a purpose for you. पर परमेश्वर के मन में आपके लिए भी मकसद है। The end is not this. आपकी कहानी यहाँ समाप्त नहीं This होती। is just the beginning. ये तो सिर्फ शुरुआत है। As you put your trust in the Lord, जैसे आप अपना भरोसा परमेश्वर पर डालते हैं, as you start meditating on His word, जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, you start becoming a tree planted by the riverside. आप ऐसा पेड़ बन जाते हैं जो नदी के पार लगाया गया हो। You see, Joseph had to be used by God. और जरूरी था कि परमेश्वर यूसुफ का इस्तेमाल करे। But Joseph had got a lot of hurt. पर यूसुफ ने अपने जीवन में बहुत सारा दुख झेला था। He was sold by his brothers. उसके अपने भाइयों ने उसे गुलाम बनाकर He बेच was दिया। put in prison even though he did no wrong. उसने कुछ गलत नहीं किया, पर बेगुनाह होते हुए भी उसे कैद खाने में डाला He गया। used his spiritual gift to bless 2 people of the king's court. और उस कैद खाने में उसने अपने आत्मिक वरदान का इस्तेमाल किया और 2 लोगों को उनके सपने का मतलब बताया। Yet he was forgotten. फिर भी उसे उस व्यक्ति ने भुला दिया। He was forsaken by his brothers. उसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया। He was falsely accused by his own master. और उसका जो स्वामी था उसकी पत्नी ने गलत इल्जाम उस पर लगाया। And he was forgotten by the very person he helped. और कैद खाने में जिसकी उसने मदद की वो व्यक्ति ने भी उसे बाहर निकल के उसे भुला दिया। But we read one more line in that entire description. पर वो पूरी कहानी में हम एक वाक्य पढ़ते हैं, God was with him. हर बार जब यूसुफ अकेला था, बाइबल बार बार कहती है कि परमेश्वर उसके साथ था। And that is what we have to keep telling ourselves today. और यही बात हमें अपने आप को याद दिलानी है बार बार। God was with him in the pit. जब वो खड्डे में था परमेश्वर उसके साथ था। God was blessing him when he was in Potiphar's house. जब वो पोतीफर के घर में था परमेश्वर उसके साथ था और उसे आशीष दे रहा था। Even when he was in the prison, God was with him in the prison. और जब वो कैद खाने में था, बाइबल कहती है कि कैद खाने में भी परमेश्वर उसके साथ था। Now friend, let me tell you something on the message. और कुछ संदेश मैं आपको इसमें से देना चाहता हूँ। God was working with him. परमेश्वर उसके साथ काम कर रहा था। God knew the purpose of what Joseph is going to become. और यूसुफ क्या बनने वाला है आगे चलकर, उसके जीवन का मकसद परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता था। But to train him and to strengthen him, पर उसे तैयार करने और उसे इल्म देने के लिए God had to work in him. परमेश्वर को उसके जीवन में काम करना जरूरी था। He had to clean him of all the hurt. परमेश्वर के लिए जरूरी बन गया था कि उसके
दिल से हर दुख और दर्द को बाहर निकाले। God had to clean him and cleanse him and keep him clean so that God could now use him and fill him. और ये जरूरी था कि परमेश्वर यूसुफ को साफ करे, धोकर पाक करे और उसे सुखाए ताकि उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके। And how did God use Joseph? और कैसे परमेश्वर ने यूसुफ का इस्तेमाल किया? Similar to my earlier example that I shared. जैसे पहले मैंने आपको मिसाल दी उसी तरह Joseph became the measuring cup of saving Egypt. और जैसे मैंने आपको वो कटोरे के या डब्बे के बारे में बताया जो नापने में हमारी मदद करता था, उसी तरीके से यूसुफ मिस्र के लिए नापने वाला प्याला बन गया। He told the Pharaoh, उसने फिरौन से कहा, we'll take 1/5 और हम हर चीज में से 5वां हिस्सा लेंगे for the 7 years, 7 साल के लिए, so that 1/5 ताकि जो 5वां हिस्सा हम हर चीज से बचाएंगे will become our sustenance वो हमारे लिए बचने का या हमें बरकरार रखने का वजह बन जाएगा for the next 7 years आने वाले 7 साल के when लिए। there's going to be famine in the land. आने वाले 7 साल में जब अकाल पड़ेगा तो यही 5वां हिस्सा जो आज हम बचा के रख रहे हैं वो उस समय हमारी मदद करेगा, हमें बचाए रखेगा। I'm sure Joseph would have been known as the 1/5 man. और यूसुफ को उस समय का 5वां हिस्सा ऐसे इंसान से पहचाना Because गया होता, his face would make people remember, oh, he's come to take our 1/5 grain. क्योंकि जब भी वो लोगों के पास जाता तो लोग उसी बात से उसे पहचानते कि ये हमारे जो गेहूं है उसमें से 5वां हिस्सा लेने आया है। He would be maybe roaming around with the cup which measures the grain. हो सकता है कि वो ऐसा प्याला लेके घूम रहा था जो उस गेहूं को नाप सकता था। But let me tell you, friends, पर आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, that very measuring cup और वही नापने वाला प्याला became so valuable वो इतना अनमोल बन गया that during the famine, कि जब अकाल का समय आया people were giving off their money and their lands and their own lives तो बाकी के जो देश के लोग हैं वो ये अनाज खरीदने के लिए वो अपना पैसा दे रहे थे, जमीन जायदाद बेच के पैसा दे रहे थे ताकि इस अनाज को खरीद सके। and that measuring cup became their sustenance. और वही नापने वाला प्याला उनको जिंदा रखने का कारण बन गया। And they would measure how much grain is being taken in exchange to their selling of their lands and their lives and their livelihoods. और वो जो भी अपनी जमा पूंजी, अपनी जमीन जायदाद बेचकर पैसा दे रहे थे उसके बदले में उसी नापने के प्याले में वो अनाज खरीद रहे थे। Friends, Pharaoh told the people, if you want food, go to Joseph. He is in charge. और ऐसा समय आया कि फिरौन ने सभी लोगों से कह दिया कि जिसको भी अनाज चाहिए वो यूसुफ के पास जाए क्योंकि ये सारा जो अनाज है यूसुफ के पास पड़ा है। And in the context that we read today, और आज जो हमने पढ़ा वचन उसमें लिखा है, his brothers came to him and told him, उसके भाइयों ने आकर उससे कहा please forgive us. कि कृपया हमें माफ कर दे, Please forgive us for the wrong that we have done to जो भी you. गलत काम, जो बुराई हमने तुझसे की है, प्लीज कृपया हमें माफ कर। And Joseph said, और यूसुफ कहता है, before you have asked me for repentance, प्रायश्चित करने या माफी मांगने से पहले God has already worked in my heart. परमेश्वर ने पहले ही मेरे जीवन में, मेरे हृदय में काम किया है। And then, friends, he told his brothers और उसने फिर अपने भाइयों से कहा that I have already forgiven you. कि मैंने पहले से ही तुम्हें माफ कर दिया है। And he wept और फिर वो रोया because he saw that his brothers are truly repentant of what they have done in the past. कि वो रोया ये बात समझ के कि मेरे भाई सच्चे दिल से मुझसे माफी मांग रहे उस हर बुराई के लिए जो उन्होंने पहले मेरे साथ की थी। Because they're getting grounded in the guilt of what they did. क्योंकि जो उन्होंने गलती की थी उस गलती का एहसास उन्हें था, वो दोष की भावना में चले गए थे। But let me tell you something, friends. पर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, God could never have used Joseph परमेश्वर कभी यूसुफ का इस्तेमाल नहीं करता if he would not have forgiven his brothers. अगर यूसुफ अपने भाइयों को माफ नहीं करता, If he would not have forgiven the master who was an Egyptian. अगर यूसुफ मिस्र के मालिक को माफ नहीं करता जिसने उस पर गलत इल्जाम लगाया, God would have never used him to become the person who gives food to not just Egypt but all the neighboring lands. परमेश्वर यूसुफ का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता कि यही वो व्यक्ति है जो मिस्र को और आसपास के देशों को खाना दे या अनाज दे, अगर वो अपने मन में नफरत, गुस्सा रखता और अपने भाइयों को या मालिक को माफ नहीं करता। Friends, today we need to become a measuring cup. आज हमें भी एक नापने वाला प्याला बनना है। And we need to be used as a vessel of God. और परमेश्वर के हाथों का प्याला बन के हमारा भी इस्तेमाल होना जरूरी है। So I want to share these two things. तो दो बातें आपको बताऊंगा। First is forgiveness. सबसे पहले माफ कीजिए, So that God can start
removing all the faults of the other people that they have done to you. लोगों को माफ कीजिए ताकि जो भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है वो हर ठेस को परमेश्वर आपके मन से निकाल कर आपको साफ करे. And the second thing is और दूसरा है repentance. आप प्रायश्चित कीजिए. Because nobody is perfect. क्योंकि कोई भी सिद्ध नहीं है. Knowingly or unknowingly, we also would have done wrong to somebody. जाने अनजाने में हमने भी किसी के साथ बुरा बर्ताव किया होगा. So forgiveness and repentance goes hand in hand. तो जहाँ पे माफी लेना और किसी से माफी मांगना ये दोनों एक साथ चलता है. So that God can use us to become a vessel for His purpose. ताकि जब भी हम लोगों को माफ करते हैं और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें साफ करके अपने नापने वाला प्याला बनाकर हमारा इस्तेमाल करेगा. You know, godly sorrow brings true repentance. और बाइबल कहती है कि जो दैविक दुख है उससे दिल से प्रायश्चित होता है. And Joseph had already gone through that process of forgiving his brothers, his family, the people of Egypt, and everybody else. और यूसुफ ने पहले से ही वो दिन गुजारे थे जहाँ पे दिल से उसने अपने भाइयों को, अपने मालिक को और उस व्यक्ति को भी जिसने उसे भुला दिया, उन सभी को उसने दिल से माफ कर दिया. And that is one of the reasons why he became the measuring, not just the measuring cup, but he became the source of sustenance for all the people and gave glory to God. और क्योंकि उसने सभी को माफ किया और परमेश्वर को वो सफाई का काम अपने जीवन में करने दिया, इसीलिए वो नापने वाला प्याला बना और बाकी सभी के लिए अनाज देने का जरिया बन सका. And he not just became that, he became the provider for all his brothers. और वो सिर्फ इतना ही नहीं, अपने भाइयों का और उसके बच्चों का पालन पोषण करने का जरिया बना. And as I close, I want to just close in one thing. और समाप्त करते हुए एक ही बात बताऊंगा. Each one of us हम में से हर कोई can become the vessel of God. हम परमेश्वर का बर्तन बन सकते हैं. We need to go in and ask God to cleanse us. और हमें प्रार्थना में जाकर परमेश्वर से कहना है कि प्रभु आप मुझे साफ कीजिए. Appropriate His blood that He shed for us. और उसने जो अपना लहू हमारे लिए बहाया, उस लहू से हमें धोकर साफ करे. So once we become clean, ताकि एक बार जब आप साफ हो जाएंगे, we will be ready to be filled. तो फिर हम भरने के लिए तैयार रहेंगे. And once we become filled, और एक बार हम प्रभु से भर जाते हैं, we start flowing with what He has in us. तो जिस बात से उसने हमें भरा है वही बातें हमारे जीवन से बहकर निकलती हैं. So that people will then experience God's fullness in our ताकि lives. फिर लोग जो इस बहाव के द्वारा परमेश्वर की भरपूरी का मजा ले सके हमारे जीवन से. And as I pray, और जैसे हम प्रार्थना करेंगे, join with me. आप मेरे साथ जुड़िए. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we ask you हम आपसे मांगते हैं that you take our lives कि आप हमारा जीवन अपने हाथों में लीजिए and cleanse us और हमें साफ कीजिए from all the bitterness that we have, हर कड़वाहट से जो हमारे मन में अब तक all थी, the anger, हर तरह का गुस्सा, all the unforgiveness, हर तरह की अक्षमा all the remembrance of the wrongs, और जो भी लोगों ने गलत किया अगर वो याद हमारे मन में है, that we may remove it from our consciousness, हमें कृपा देना कि ये सारी बातें हमारे मन से निकल जाएं, so that we may make space for your grace, ताकि हम आपकी कृपा को बहने के लिए जगह बनाएं and we may cleanse ourselves from all sin और हर पाप से हम खुद को दूर करें, साफ करें, in true repentance, सच्चा प्रायश्चित करने के so द्वारा, that we may not do any sin that displeases you, ताकि हम ऐसा कोई पाप न करें जो आपको नाखुश करे, so that we may be filled even more, ताकि हम आपसे और ज्यादा भर जाएं and in that filling we may be filled to the brim, और उस भरपूरी में हम हद से ज्यादा भर जाएं, so that we may become the vessel for your use, ताकि हम ऐसा बर्तन बन सके जो आपके इस्तेमाल के लायक हो. and people will be able to use you will be able to use us for your people, और आप हमारा इस्तेमाल कर सकेंगे अपने लोगों के लिए, and they will also be filled with your grace, और वो भी हमारे द्वारा कृपा से भर so जाएंगे, that each one of us ताकि हम में से हर कोई will give you the glory, honor and praise. हम में से हर कोई अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा और गौरव और आराधना दे. This we pray in the mighty master's name of our Lord and Savior Jesus Christ. और ये हम हमारे प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता के नाम में मांगते हैं. Amen. आमीन. God bless you all, प्रभु आप सभी को आशीष दे. and keep praying, प्रार्थना करते रहिए keep interceding, और मध्यस्थी की प्रार्थना कीजिए and continue to become a blessing. और लगातार दूसरों के लिए आशीष का जरिया बनिए. See you next time. अगली बार फिर से आपसे मुलाकात होगी. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे. Bye bye. बाय. थैंक यू.